خوفناک سیلاب نے بونیر کو شہر خاموشہ میں بدل دیا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 213 ہو گئی۔ بونیر کی تحصیل گدیزئی سب سے زیادہ متاثر، 158 افراد لقمہ اجل بنے۔ تحصیل شگرزئی میں 38، تحصیل ڈگر میں 25 افراد جاں بحق، گلبانڈی میں 22 افراد ملبے میں ابھی تک دبے ہوئے ہیں۔ قدر نگر میں سیلابی ریلا ایک ہی خاندان کے 27 افراد سمیت 40 لوگوں کو بہا لے گیا۔ 16 لاشیں مل گئیں، 4 کو زندہ نکال لیا گیا، مزید کی تلاش جاری۔ خوفناک سیلاب میں بچ جانے والے اپنے پیاروں کی تلاش میں ہسپتال کے چکر لگانے پر مجبور۔ دوسری جانب جن کی لاشیں مل گئیں ان کی تدفین کا سلسلہ بھی جاری۔ خیبر پختونخوا میں جگہ جگہ تباہی کی داستانیں۔ کلاؤڈ برسٹ، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 307 تک جا پہنچی۔ جاں بحق افراد میں 279 مرد، 15 خواتین اور 13 بچے شامل۔ صوبائی حکومت کا آج سوگ کا اعلان۔ قومی پرچم سر نگوں۔ بونیر اور باجوڑ کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ پیر بابا، گدیزئی، چغرزئی، گاگرا اور ڈگر میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ 200 سے زائد لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے پاک فوج اور انتظامیہ کا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن بھی جاری۔ سیلابی ریلوں سے بچ جانے والے بچا کچا سامان سمیٹنے میں مصروف۔ مزید بارشوں کے پیش نظر چارسدہ اور شب قدر میں بھی سیلابی ریلوں کا خطرہ، شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ ہمارے 6 ایک میری گھر والی اور 5 ذاتی بچے، اس مکان پہ جیسے ہم نکلے تو ایک دم اس طرف سے پانی آ گیا تھا۔ پانی جیسے آیا بھائی تو میرے گھر والی میرے ایسے میرے ہاتھ سے پکڑی ہوئی تھی اور پیچھے سب بچے تھے اور میں بھی ساتھ میں گیا، میں تو رستے سے نکل گیا، باقی سب چلے۔ خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلے تباہی کی دردناک داستانیں لکھ گئے۔ ایک شخص کے سامنے اس کی کل کائنات اجڑ گئی۔ سیلابی ریلا موت بن کر آیا، بیوی اور 5 بچوں کو نکل گیا۔ بدقسمت باپ اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ ایک اور واقعے میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد پانی میں بہہ کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ لوگ نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے پیاروں کی میتیں ڈھونڈنے میں مصروف۔ باجوڑ کی تحصیل سلارزئی میں کلاؤڈ برسٹ سے ہلاکتیں 21 ہو گئیں۔ قدرتی آفت کے نتیجے میں 4 مکان مکمل طور پر زمیں بوس۔ امدادی ٹیموں نے ریسکیو آپریشن کے دوران 21 لاشیں نکال لیں۔ جاں بحق افراد میں 15 بچے، 6 خواتین اور 1 مرد شامل۔ 5 افراد زخمی بھی ہوئے۔ 3 ماہ کا بچہ تاحال لاپتہ۔ پاک فوج اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کو ضروری سامان فراہم کر دیا گیا۔ پاک فوج سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی میں پیش۔ ایک دن کی تنخواہ بحالی کے کاموں کے لیے وقف کر دی۔ پاک فوج کا ایک دن کا 600 ٹن راشن بھی خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے مختص۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں تعینات فوج سیلاب متاثرہ عوام کی بحالی میں بھرپور مدد فراہم کرے گی۔ اضافی فوجی دستے بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ بونیر، سوات اور باجوڑ میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان کی فراہمی اور سیلاب میں پھنسے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ تمام متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کے پی کے سیلاب متاثرین کی داد رسی کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پی سے رابطہ۔ کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈز کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ کہا وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی ہر قسم کی مدد کرے گی۔ متاثرین کے لیے ادویات، خیمے اور اشیاء خورونوش بھیج رہے ہیں۔ این ڈی ایم اے کو ریلیف آپریشن میں ہر قسم کی معاونت کی ہدایت کر دی ہے۔ صدر مملکت کا بھی قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ کہا متعلقہ ادارے امدادی سرگرمیوں کو تیز کریں۔ بلاول بھٹو کا بھی اظہار افسوس۔ کہا موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والے سیلابی ریلوں سے بچاؤ کے لیے دور رس حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں قدرتی آفت کی اس گھڑی میں کے پی کے عوام کے ساتھ سیلاب کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اور ہمارے بہت ہی معصوم بہن بھائی قریباً 260 کے قریب شہید ہو چکے ہیں اور کافی نقصانات ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ میں وہ اتوار کا جو کمیونٹی کا پاکستانی بہن بھائیوں کا ڈیاسپورا کا جو فنکشن تھا میں اس کو اٹینڈ نہیں کر سکوں گا۔
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए इमदाद की अपील। कहा, मुल्क में और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुतासरा ख़ानदानों की बहाली में अपना किरदार अदा करें। मिलकर ही हम इस मुश्किल वक्त से निकल पाएंगे। हुकूमत तमाम मुहैया वसाइल के जरिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म ने भी हंगामी इजलास की सदारत करते फौरी इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत की है। मजीद कहा, मेरे तयशुदा दौरे बरतानिया के दौरान बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात नहीं हो सकेगी। ये फैसला उन अफराद से इजहार यकजहती के तौर पर किया गया जो इस वक्त दुख में हैं। कोशिश होगी तमाम तवज्जो मुल्क में रिलीफ की कोशिशों पर मरकूज की जाए। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से वज़ीर आला मरीम नवाज का राबता। कीमती जानों के ज़या पर अफसोस, मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। कहा, पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम के लिए दस्तयाब है। अहले पंजाब अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों और बहनों के गम में शरीक हैं। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ की तरफ से भी ताज़ियत की। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब के फ़ोन और ताज़ियत पर शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब गवर्नर फैसल करीम कुंडी की हिदायत पर अंजुमन हलाल अहमर खैबर पख्तूनख्वा का इमरजेंसी रिलीफ सेंटर कायम। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, यह वक्त सियासत करने का नहीं, एक दूसरे की मदद करने का है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राबता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बोनेर, बाजोड़, मानसेहरा और बडग्राम को आफत ज़दा ज़िला करार दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर मुतासरा ज़िला के लिए 50 करोड़ के फंड्स भी जारी। ज़िला बोनेर के लिए 15 करोड़, बाजोड़, बडग्राम और मानसेहरा 10-10 करोड़ और सवात के लिए 5 करोड़ रुपए जारी। PDMA का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल। मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गईं। फ्लैश फ्लड से 74 घरों को नुकसान पहुंचा। सवात, बोनेर, बाजोड़, तुरगर, मानसेहरा, शांगला और बडग्राम में 61 घर जुज़वी तौर पर तबाह हुए, 7 मुकम्मल तौर पर तबाह। बोनेर, बाजोड़ और बडग्राम सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला में शामिल। पेशावर में इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की टीम भी इमदादी कामों की निगरानी के लिए पेशावर पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम की वजह से तबाह हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा ख़राब मौसम और शदीद धुंध के बायस पेश आया। दहशतगर्दी के खदशात का जायजा लेने के लिए तहकीकाती टीम आज जाए वक़ुआ का दौरा करेगी। सरकारी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स ताहाल नहीं मिल सका। ज़राए के मुताबिक ब्लैक बॉक्स का डाटा हादसे की वजूहात जानने में अहम किरदार अदा करेगा। हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हुए। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। महकमे मौसमियात ने जुड़वा शहरों समेत बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। PDMA पंजाब ने भी अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का 7वां स्पेल ज्यादा मजबूत है, तूफानी बारिशें हो सकती हैं। बालाई पंजाब में तूफानी बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के खदशात, दरियाओं, नदी नालों और नशेबे इलाकों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में रूस यूक्रेन जंग बंदी पर इत्तेफाक न हो सका। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 4 घंटे जारी रही। अमेरिकी सदर ने पुतिन के साथ मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। कहा, फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक नहीं हो सका, लेकिन हम करीब हैं। ज्यादातर नुकात पर इत्तेफाक हो गया है। पुतिन चाहते हैं लोगों का ज्यादा जानी नुकसान ना हो। सबसे पहले ज़ेलेंस्की को फोन करूंगा, नेटो हुक्काम से भी फोन पर बात होगी। रूसी सदर ने सदर ट्रंप को मॉस्को में अगली मुलाकात की दावत दे दी। पुतिन ने कहा, हम यूक्रेन रूस जंग का खात्मा चाहते हैं। ट्रंप से मुलाकात तामीरी रही। सदर ट्रंप ने अच्छे पड़ोसियों जैसा रवैया अपनाया। मुलाकात की दावत पर ट्रंप का शुक्रगुजार हूं। सदर ट्रंप ने अलास्का में सदर पुतिन का रेड कारपेट इस्तकबाल किया। अपनी गाड़ी में एयरबेस से मीटिंग के मुकाम पर ले गए। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तंज। कहा, अगर ट्रंप ने यूक्रेनी इलाके दिए बगैर जंग बंदी करा दी तो मैं खुद उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद करूंगी। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि ट्रंप को मालूम होना चाहिए वो किसी दोस्त से मुलाकात नहीं कर रहे, बल्कि एक दुश्मन से मिल रहे हैं जो अमेरिका की तबाही चाहता है।
हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 84 पैसे सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपए 99 पैसे लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में भी 7 रुपए 19 पैसे की कमी। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान किया गया। नई कीमतों पर फरोख्त जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायजा इजलास। चीनी कंपनी की जानिब से तैयार करदा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी कंपनी का बिला मुआवजा हस्पताल के लिए आलमी मयार का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बनाना पाक चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार का हस्पताल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनी के डिज़ाइन का टेक्निकल जायजा लेने की हिदायत कर दी। कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और मसनूई जहानत का इत्तलाक करने की भी हिदायत की। वाशिंगटन में भारत के यौम आज़ादी पर सिखों का मुजाहिरा। एहतजाज के दौरान भारतीय सफारतखाने को घेर लिया। खालिस्तान के परचम उठाए मुजाहिरीन के भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे। भारतीय तिरंगे के टुकड़े करके भारतीय सफारतखाने के सामने फेंक दिए। खालिस्तान तहरीक की जानिब से वाशिंगटन में आज रेफरेंडम भी होगा। हजारों सिख वोटिंग के लिए पहुंच गए। सरबराह खालिस्तान तहरीक डॉक्टर सिंधु ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब भारतीय पंजाब को आजाद करा के खालिस्तान बनाएंगे। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 44 अफराद शहीद। बेवरिज कैंप में बमबारी से एक ही खानदान के 6 अफराद जाम हक, 4 बच्चे भी शामिल। मैसूर इलाके में एक और बच्चा भूख से हलाक। भूख से मजमूई हलाकतें 240 हो गई। BBC की रिपोर्ट में इसराइली फौजियों की जानिब से 160 बच्चों को गोली मारकर कत्ल करने का इंकशाफ। तमाम बच्चों की उम्रें 12 साल से कम थीं। 95 बच्चों को सर या सीने पर गोली मारकर कत्ल किया गया। तुर्किया में अपोजिशन जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन। करप्शन के इल्जामात पर मजीद 40 सियासतदान गिरफ्तार। तुर्क मीडिया के मुताबिक इस्तांबुल पुलिस ने जिला बेओगलू के मेयर और उनके करीबी मुशीरों समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के दीगर अरकान को हिरासत में ले लिया। कौमी क्रिकेट टीम के नाकिस कारकर्दगी। खिलाड़ियों के भारी मुआवजे नजरों में आ गए। PCB का ICC आमदन का शेयर खत्म करने का फैसला। नए मुआहिदों में आखिरी बार शामिल किया जाएगा। 10 साला बरतानवी बच्ची ने नई तारीख रकम कर दी। बोधना शिवनंदन ने शतरंज में बरतानिया के ग्रैंड मास्टर को शिकस्त दे दी। 10 बोधना ग्रैंड मास्टर को हराने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गई। 10 साला बच्ची ने खवातीन की बैनुल अक़वामी मास्टर बनने का एजाज़ भी हासिल किया।